जस्ट लाइक इन इंडक्टिव इफेक्ट, जैसा हमने प्लस आई ग्रुप्स और माइनस आई ग्रुप्स डिस्कस किया, वैसे यू आल्सो हैव प्लस सम ग्रुप्स एंड माइनस सम ग्रुप्स, बट इन केस ऑफ रेजोनेंस यू कैन आल्सो हैव ड्यूअल नेचर. ड्यूअल नेचर मतलब इट कैन गिव इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों हो सकता है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी. इलेक्ट्रॉन्स देने से स्टेबिलिटी मिल रहे तो इलेक्ट्रॉन्स दे देगा वो, इलेक्ट्रॉन्स खींचने से स्टेबिलिटी मिल रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा. ओके. And it is very easy to identify electron releasing groups in case of resonance. If you are having any atom, on the particular atom you are having a lone pair, it will always be electron releasing, because lone pair alternate pi bond na, electrons will always jump from higher density to lower density. Lone pair ऐसा जाएगा and ये जो pi bond है ऐसा shift होगा. Very easy to identify electron releasing groups. आपको इतना ही देखना है, atom को देखना है, उसके ऊपर lone pair रहा, then it will be electron releasing group. Very easy to identify electron withdrawing group. You need to have a double bonded group and the electronegativity of B has to be greater than that of A. A multiple bonded electronegative atom will always pull the electrons towards itself in resonance, but it will not give electrons. Suppose if it is giving away the electrons, इस particular electronegative atom का octet क्या हो जाएगा? Incomplete हो जाएगा. Okay, अगर ये दे दिया तो electron, B का octet incomplete होगा, that is not a viable system. You need to have octet complete for the electronegative element. A multiple bonded, दो bonds है ना इसके लिए, a multiple bonded electronegative atom will always pull the electrons towards itself in resonance but not give the electrons. So NO2, C double bond H, इन सब में देख सकते हैं आप लोग, double bond O, 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 triple bond N. N is also an electronegative element. They will always pull the electrons, and you can have a dual behavior whenever you have A double bond B, A के ऊपर लोन पेयर भी है and it is having double bond. कभी कभी वो लोन पेयर दे सकता है, कभी कभी ये डबल बॉन्ड के साथ इलेक्ट्रॉन्स खींच सकता है. It all depends upon stability. आपको दो एग्जांपल्स दिखाए यहाँ पे. This is a carbocation which is having positive charge. Positive charge को स्टेबिलिटी के लिए I need to give electrons. So ये जो पर्टिकुलर लोन पेयर है, if I am giving this in resonance, I will be forming this particular system which is an octet completed structure. If I am withdrawing electrons, मतलब, or else if I am giving this particular pi bond in resonance, तब क्या होगा? इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है and उसका octet incomplete हो रहा है. So don't participate this pi bond in resonance, participate this lone pair in resonance. Accordingly, कौन सा ऑर्बिटल सिमेट्रिक होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, वो अपने आप में एडजस्ट हो जाएगा. अगर इस लोन पेयर को पार्टिसिपेट करना है तो इस p ऑर्बिटल के साथ ये लोन पेयर वाला ऑर्बिटल पैरेलल में रहेगा. If this pi bond wants to participate, ये pi bond का ऑर्बिटल जो है वो पैरेलल में आ जाएगा. बस इतना ही देखना है हमको. जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको पैरेलल में रखना है. यहाँ पे देखो ये कार्बेनियन है, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज. नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स हमको खींचना है. ऑलरेडी वो नेगेटिव चार्ज है, अगर उसको इलेक्ट्रॉन्स दे रहा हूँ तो अनस्टेबल होगा. सो क्या करना है? गिव दिस इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे नेगेटिव अल्टरनेट पाई बॉन्ड, इसको रेजोनेंस में रखो, वो अपने आप में एडजस्ट होगा. डोंट वरी, this particular orbital p orbital will become parallel to this and they will be participating in resonance, क्योंकि this will be attaining stability. नेगेटिव चार्ज इनिशियली कार्बन के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड है, अब ऑक्सीजन के ऊपर भी आ गया. इनफैक्ट ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है इफेक्टिवली हैंडल हो सकता है. रीजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. आउट ऑफ दीज टू व्हिच विल बी इन मेजर अमाउंट? द सेकंड स्ट्रक्चर ना, ये माइनर हो जाएगा, ये वाला पार्ट मेजर हो जाएगा, because oxygen is more electronegative. Oxygen के ऊपर नेगेटिव चार्ज बेटर होगा. Okay, everyone fine? उसके बाद we have started with acidic strength of carboxylic acids. Carboxylic acids are sufficiently acidic because if you are having normal carboxylic acid without losing H positive, इस केस में भी आपको रेजोनेंस हो सकता है, but in this case the resonance will lead to charge separated structure. चार्ज सेपरेटेड स्ट्रक्चर में रेजोनेंस का कंट्रीब्यूशन उतना ज्यादा नहीं रहेगा when compared to charge delocalized structure. So if I am removing H positive from this, I am forming that particular conjugate base where you can have charge delocalized structure. इस केस में रेजोनेंस जो है it is very much effective because you are forming two equivalent structures. Whenever you are forming equivalent structure, the resonance stabilization will be the highest. Okay, दोनों equally distribute कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज को, ऑक्सीजन. Okay. So as the carboxylic acid is making more and more stable conjugate base,
it is ready to lose that H positive because conjugate base bante hi it is becoming stable. So if it is becoming stable, it will be more ready to lose that particular H positive. अगर ये unstable हो रहे तो it won't be ready to lose that H positive. More is the stability of the conjugate base, more will be the acidic strength. मतलब उतना ज़्यादा H positive दे देगा वो. Clear है? Okay. इसके बाद हमने I have tried to compare the carboxylic acid with sulfonic acid. In case of sulfonic acid also, if you are not losing the H positive, you are forming a charge separated structure. If you are losing H positive, you are forming a charge delocalized structure. In charge delocalized structure, the resonance stabilization is highest. Hence, it is trying to lose that particular H positive. And यहाँ पे H positive lose करने के बाद जो भी conjugate base बन रहे हैं, उसमें negative charge 3 ऑक्सीजन के ऊपर distributed है. In case of carboxylic acid, the same negative charge is distributed only on 2 oxygens. 3 oxygens के ऊपर distribution से ज़्यादा stability होगा when compared to the distribution of 2 oxygens. So इसका conjugate base और ज़्यादा stable है. If this is even more stable, this will try to lose even more H positive. All of them are weak acids. Weak acids का मतलब क्या है? They won't be dissociating to 100%. There is chemical equilibrium. There is equilibrium between dissociated acid and the undissociated acid. Chemical equilibrium chapter में पढ़ा है ना? Forward भी जा सकता है reaction, backward भी जा सकता है. जितना forward जाएगा, acidic strength उतना ज़्यादा होगा. जितना backward जाएगा, acidic strength उतना कम होगा. इसमें reaction forward ज़्यादा जाएगा. Reason क्या है? The formed conjugate base is stabilized by resonance. इसमें relatively थोड़ा कम जाएगा because इसका conjugate base की stability इसके comparison में थोड़ा कम है. Then we have tried to compare the phenol, acidic strength of the phenol. Even phenol is acidic. The reason for acidic strength is again resonance. Whenever I am not releasing H positive, if I am trying to participate this lone pair in resonance, again I am forming charge separated structures. Positive negative. Initially molecule तो neutral है ना, उसके बाद charge separate structure मिल रहा है. Charge separated structures में resonance contribution उतना ज़्यादा नहीं होगा. If I am removing the H positive, उसके बाद जो भी resonance करवा रहा हूँ, these are charge delocalized structures. Initially charge जो है oxygen के ऊपर ही है. Delocalized structures मतलब I am distributing that particular negative charge on carbons also. आपको ऐसा कुछ लग सकता है इसमें 4 atoms के ऊपर distribute हो रहे हैं overall, but carboxylic acid में आपको 2 atoms के ऊपर ही distribute हो रहे हैं. Even though the negative charge is distributed on 4 atoms, out of those 4 atoms, 3 atoms are of carbon and only 1 atom is of oxygen. In case of carboxylic acid, the distribution is on 2 oxygen atoms. Oxygen being more electronegative, it can effectively handle the negative charge. Carbon being less electronegative, उसके ऊपर negative charge उतना ज़्यादा stable नहीं होगा. So आपको ये नहीं देखना है जितना ज़्यादा atoms के ऊपर distributed है. आपको ये देखना है कितना effectively distributed है वो. Okay? Clear है? There is a lot of load. एक 100 kg है, वो 100 kg को मैं 4 parts में ठीक है, not required. This example is not required. जरूरत नहीं, समझ में आ गया ना? ठीक है ना? Okay. So overall हमने क्या मार्क किया? The acidic strength order is sulfonic acid greater than carboxylic acid greater than phenol. Carboxylic acid will be stronger acid because इसमें negative charge 2 oxygens के ऊपर distribute हो रहे हैं. Phenol is relatively weaker acid because इसके ऊपर negative charge एक ही oxygen 3 carbons के ऊपर distribute हो रहे हैं. Clear है? Good. Okay. उसके बाद ये लास्ट में किया था हमने, very very important. यहाँ पे फिर से आप लोग concentrate करना. इतना ही करेंगे आज. We will see till this particular part. After this, we will be solving questions. If I want to compare among phenol, ROH, H2O, यहाँ पे आपको थोड़ा और डिटेल्स लिखता हूँ. देखो, phenol is representation is PHOH, normal alcohol is ROH, and then we are comparing H2O. If phenol loses the H positive, it converts into, this is an equilibrium reaction, it converts into PHO minus plus H positive,
if alcohol loses H positive ROH, alcohol is ROH, it converts into RO minus plus H positive. If water loses H positive, it converts into OH minus plus H positive. Any doubt, anyone? Phenoxide मतलब क्या होगा? बेंजीन रिंग, उसके ऊपर O माइनस. अल्कोहल मतलब क्या है? कुछ अल्काइल ग्रुप है, उसके बाद O माइनस. दिस इज HO माइनस. इन केस ऑफ फिनॉक्साइड आपको एटलीस्ट रेजोनेंस है. whenever you are having resonance there is transfer of electrons और वो जो चार्ज है अच्छे से delocalize हो रहे हैं ना. In case of RO minus and HO minus, the negative charge is concentrated only on oxygen. They are not getting distributed because there is no resonance. So I can definitely say out of these two species, phenol will be stronger acid क्योंकि इसमें resonance है ही नहीं. अभी इन दोनों में कंपेयर करने के लिए I am using electron releasing groups and withdrawing groups. Electron releasing groups acidic strength को क्या करेगा? कम करेगा. कम करेगा. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वेरी गुड, डिक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ. सो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो R है अल्काइल ग्रुप वो प्लस आई ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है. ओके, सो व्हाट विल हैपन टू द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ROH? इट गेट्स डिक्रीज्ड. अभी ये जो हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन इज रेफरेंस. रेफरेंस मतलब इट neither acts as electron withdrawing group nor electron releasing group. रेफरेंस है. सो आउट ऑफ ROH and water, which will be a stronger acid? वाटर, क्योंकि वाटर के अंदर कुछ डिस्टेबलाइजेशन नहीं हो रहा है. ROH के अंदर आई एम डिस्टेबलाइजिंग इट विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. इसमें क्या हो रहा है? यू आर हैविंग रेजोनेंस. रेजोनेंस मतलब माइनस M, क्योंकि वो खींच रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग. एंड फिनाइल ग्रुप जो है वो माइनस I है. आउट ऑफ रेजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इज फार मोर डोमिनेंट. सो उसके प्रेजेंस में इंडक्टिव इफेक्ट को देखने की जरूरत नहीं. अगर आप लोग देखा भी है, इंडक्टिव इफेक्ट के साथ भी इट इज गेटिंग स्टेबलाइज्ड. माइनस आई ग्रुप है ना. सो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? फिनोल रहेगा. उसके बाद यू विल बी हैविंग वाटर. सो यहाँ पे आई कैन राइट दैट एज PHOH ग्रेटर देन. आपको याद रखने के लिए एक चीज बता रहा हूँ, डोंट अप्लाई दिस इन रियल लाइफ. याद रखने के लिए, अल्कोहल जो है इवन दो इट इज लेस एसिडिक व्हेन कंपेयर्ड टू वाटर, उसको पीने से देयर आर सम साइड इफेक्ट्स. वाटर को पीने से कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं है. ऐसे कुछ याद रखो. वाटर इज मोर एसिडिक. आपको लग सकता है अल्कोहल हैज टू बी मोर एसिडिक बिकॉज वो इंजीरियस टू हेल्थ है ना. अल्कोहल हैज टू बी मोर एसिडिक, बट अल्कोहल इज नॉट मोर एसिडिक. अल्कोहल इज लेस एसिडिक व्हेन कंपेयर्ड टू वाटर. एसिडिक का मतलब क्या है? एसिडिक का मतलब क्या है? The one which will give more and more amount of H positive, we say it is a stronger acid. अभी H2O के अंदर से जो H positive ज्यादा है, जो H positive आएगा, it will be relatively more when compared to the number of H positive coming from alcohol. Clear, everyone? Okay. H2O का फिर से बताऊंगा, समझने. H2O में इसका कॉन्जुगेट बेस जो है HO माइनस है. इसका स्टेबिलिटी हमको कंपेयर करना है. HO minus में there is no significant stability or there is no significant instability. वो स्टेबल भी नहीं हो रहे, अनस्टेबल भी नहीं हो रहे, बिकॉज H जो है वो रेफरेंस है. वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग भी नहीं है ना. बट अल्काइल ग्रुप जो है, अल्काइल ग्रुप हम इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा था, ऑल अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स. सो ये इलेक्ट्रॉन्स दे के ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स दे के उस नेगेटिव चार्ज को और बढ़ा रहे हैं ना. If it is increasing the negative charge electron density, it is getting more and more destabilized. So क्या करेगा? It won't be releasing that much amount of H positive, क्योंकि रिलीज होने से वो destabilize होता जा रहा है. So वो रिलीज ही नहीं करेगा, ज्यादा रिलीज नहीं करेगा. ओके, क्लियर? ओके ओके. उसके बाद I am comparing some more elements here, which are alcohol. I want to compare alcohol. I want to compare an alkyne.
I want to compare an amine. I want to compare an alkane. सबसे पहले, whenever we see about acidic strength or whenever we want to compare about acidic strength, what we need to do is, first of all, you need to compare bond polarity if and only if all the elements are belonging to same period. देखो, ज़्यादा टेंशन मत लेना. If elements belong to same period, compare, ये ऑलरेडी हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा, कंपेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डेल्टा En, which is nothing but bond polarity. जितना ज्यादा बॉन्ड पोलैरिटी रहेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना ही ज्यादा है ना. ऑब्जर्व हियर, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, एंड यहाँ पे भी कार्बन है, ऑक्सीजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, all these belong to same period. Whenever you have elements belonging to same period, first of all you need to compare the bond polarity. जिसमें बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा रहेगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा. अब तक हमको वो कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं पड़ा. क्यों नहीं पड़ा, एक बार देखना. एवरीवन कॉन्सेंट्रेट. इन केस ऑफ सल्फोनिक एसिड which is RSO3H, in case of carboxylic acid, in case of phenoxide, always the bond is between O and H. सब में OH बॉन्ड ही था ना, सो इसलिए बॉन्ड पोलैरिटी के हिसाब से हमने कंपेयर नहीं किया और कंपेयर करने का जरूरत नहीं पड़ा. बट अभी जो एग्जांपल दिया आपको मैं यहाँ पे, अल्कोहल, अल्काइन, RnH2, द बॉन्ड्स आर डिफरेंट. यहाँ पे आपको O बॉन्ड H है, यहाँ पे आपको C बॉन्ड H है, यहाँ पे आपको N बॉन्ड H है. So first you need to compare based on bond polarity. More is the bond polarity, more greater will be the acidic strength. इतना ही. Greater is the bond polarity or greater is the electronegativity difference, greater will be the acidic strength. यहाँ पे आपके पास O bond H है, यहाँ पे आपके पास this is sp hybridized carbon, and this particular nitrogen is sp3 hybridized nitrogen. आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टिप करके दिया है इन केस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, याद है तो आपको इंडक्टिव इफेक्ट जब हमने पढ़ा था. एवरीवन प्लीज फोकस. इंडक्टिव इफेक्ट में यहाँ पे ऑब्जर्व दिस, आई हैव गिवन यू ए PST. PST इंडिकेट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग टिप. और प्रॉब्लम सॉल्विंग टिप क्या है? sp hybridized carbon is more electronegative than sp3 hybridized nitrogen. If you take elemental carbon and elemental nitrogen, electronegativity order क्या है? Nitrogen is greater than that of carbon. हमने ये भी पढ़ा, more is the S character, more will be the electronegativity. sp hybridized carbon में the S character is 50%. In sp3 hybridized nitrogen, the S character is only 25%. More is the S character, more is the electronegativity. And sp hybridized carbon is more electronegative when compared to sp3 hybridized nitrogen. ये याद रखना. sp hybridized carbon very very important. बस वो याद रखना काफी है और कुछ जरूरत नहीं. And sp hybridized carbon is more electronegative when compared to sp3 hybridized nitrogen. So bond polarity इन दोनों के बीच में ज्यादा रहेगा या इन दोनों के बीच में ज्यादा रहेगा? Tell me. C bond H के साथ. C bond H के साथ ज्यादा रहेगा. सबसे ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन हुआ. So out of all these, ROH will be the strongest acid, followed by RC triple bond CH, because C bond H में bond polarity ज्यादा है when compared to R, NH और H. ये नाइट्रोजन और H के बीच में जो बॉन्ड पोलैरिटी है ना, इसके कंपैरिजन में इसका बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा है. फॉलोड बाय लास्ट में दिस इज अल्केन. अल्केन मतलब इस पर्टिकुलर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा. sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे कम ही है. If it is an sp hybridized carbon, then only its electronegativity will be more. Is this clear? बस हो गया. Everyone, the final conclusion is, everyone please concentrate. The final order or the final conclusion, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है?
सल्फोनिक एसिड सल्फोनिक एसिड, उसके बाद कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH. ओके, उसके बाद H2CO3, this is also a carboxylic acid. H2CO3 का स्ट्रक्चर this is the structure of H2CO3. इसमें भी आपको HCOH है. ओके, बट इसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो है नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कंपैरिजन में थोड़ा कम है. रीजन एक बार देखो, रीजन अभी थोड़ा सा बता रहा हूँ. द रीजन इज ये जो HO इसका कॉन्जुगेट बेस जो भी बनेगा, I have a lone pair on this oxygen. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ना ये, इट इज रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स विद रेजोनेंस. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स क्या करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, increase कम करेगा ना. सो एज अ रिजल्ट H2CO3 is having slightly lesser acidic strength when compared to the alkyl carboxylic acid. यहाँ पे क्या हुआ एवरीवन, वंस अगेन, ये जो नेगेटिव चार्ज है इट इज ट्राइंग टू पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस. व्हेनेवर दिस इज ट्राइंग टू पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, यहाँ पे उसके दूसरे डायरेक्शन से देयर इज सम हिंड्रेंस. इस OH के ऊपर जो लोन पेयर है ना, दैट इज आल्सो ट्राइंग टू पार्टिसिपेट. यहाँ पे भी नेगेटिव है, सॉरी, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे लोन पेयर है. लोन पेयर अल्टरनेट पाई बॉन्ड, नेगेटिव अल्टरनेट पाई बॉन्ड. आउट ऑफ दीज टू यही बेटर रहेगा बिकॉज दिस विल लीड टू चार्ज डीलोकलाइज स्ट्रक्चर. दिस विल लीड टू चार्ज सेपरेटेड स्ट्रक्चर. बट इवन दो इट इज चार्ज सेपरेट स्ट्रक्चर, थोड़ा बहुत तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, इट इज हैविंग सम हिंड्रेंस. इस नेगेटिव चार्ज को पार्टिसिपेट करने के लिए देयर इज सम हिंड्रेंस. एज अ रिजल्ट द एसिडिक स्ट्रेंथ इज स्लाइटली डिक्रीज्ड. RCOH will be greater than H2CO3. ओके, उसके बाद हमने क्या मार्क किया? आफ्टर दिस यू हैव फिनॉल THOH. आफ्टर दिस यू हैव वाटर. वाटर के बाद ही अल्कोहल ROH. अल्कोहल के बाद ही यू हैव RC ट्रिपल बॉन्ड CH. दिस इज कॉल्ड एज अल्काइन और ये टर्मिनल अल्काइन है. टर्मिनल मतलब क्या है? एंडिंग में है. और जो ट्रिपल बॉन्ड जो है इट इज ऑन द लास्ट कार्बन. टर्मिनल अल्काइन. टर्मिनल अल्काइन ग्रेटर देन RNH2. RNH2 मतलब अमाइंस हो गया, ग्रेटर देन अल्केन्स RH. दिस इज द ओवरऑल ऑर्डर. बस इतना ही याद रखना है हमको. दिस इज द ओवरऑल और जनरल एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सबसे ज्यादा सल्फोनिक एसिड्स, देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स. कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बाद आपको H2CO3 है. After H2CO3 you have PHOH, which is nothing but phenol, then water, then terminal alkynes, then amines. RNH2 is nothing but amines, then you have alkanes. Clear? बस इतना ही याद रखना. ये पे वही दिया था मैंने, important order for acidic strength. इसमें और एक छोटा सा एक्सेप्शन है. नॉर्मल अल्कोहल्स, जो अल्कोहल्स है, नॉर्मल अल्कोहल्स आर लेसर एसिडिक व्हेन कंपेयर्ड टू वाटर. There is only one exception. यहाँ पे मैं इसको थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूँ. इसको सकते हैं. There is one exception. Methanol CH3OH. Methanol is more acidic than water. इसके लिए और भी कुछ रीजंस है which are not under our scope, so वो डिस्कस नहीं करेंगे. एक्सेप्शन जैसे ही मान के रखेंगे. CH3OH. Only methanol is more acidic than water. Rest all other alcohols are less acidic than water. Methanol CH3OH. ये एक्सेप्शन जैसा याद रखना. क्लियर है? ओके, सो ओवरऑल ऑर्डर में यहाँ पे आपको दिया है RSO3H, RCOH, H2CO3. This H2CO3 is used in a test called NaHCO3 test. What is meant by this NaHCO3 test? We will explore that later in organic chemistry. Don't worry. Okay, further chapters में explore करेंगे. अभी के लिए H2CO3 जो है ये क्यों यहाँ पे ऐड किया है? That is because of NaHCO3 test. We will explore that later. PHOH, there is an exception. Methanol is more acidic than water. Then you have other alcohols. Terminal alkyne, ammonia,
और RnH2 एंड CH4 और alkane. यहाँ पे जनरल alkane जैसा लिखा या जनरल amine जैसा लिखा. I have replaced one of the hydrogen with R, one of the hydrogen ये जो alkane CH4 लिया है, but you can say any alkane will be lesser acidic than any of the amines. Clear है? ठीक है, यहाँ तक ही करते हैं. We will solve some questions. चलो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. Let us solve some questions. I will leave you at 2 or by 2:05. So please concentrate. एक 20 मिनट ही बचा. Please concentrate. Read the first question. Which of the following species cannot show resonance? Resonance के लिए जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं आपको, first of all you need to see if the given examples are falling under resonating systems or not. What are the different resonating systems we have? Anyone tell me all the resonating systems? डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल. हाँ, डबल सिंगल डबल ऐसा नहीं बोलना है. पाई अल्टरनेट पाई, बट ठीक है. डबल सिंगल डबल, डबल पाई सिंगल अल्टरनेट डबल पाई, डबल सिंगल नेगेटिव डबल सिंगल पॉजिटिव डबल सिंगल लोन पेयर पॉजिटिव लोन पेयर नेगेटिव. हाँ ये क्या हो गया? पॉजिटिव लोन पेयर नेगेटिव. अल्टरनेट ऑड. रुद्रा बताओ. रुद्र. अल्टरनेट ऑड. पाई अल्टरनेट ऑड इलेक्ट्रॉन. Positive and negative charges or positive and lone pairs on adjacent atoms. A positive and lone pair on adjacent atoms or positive single lone pair. Positive single lone pair. क्या क्या है? Pi alternate pi, pi alternate positive, pi alternate negative, pi alternate lone pair, pi alternate free radical, positive and lone pair on adjacent atoms. Okay. पाई बॉन्ड है हमारे पास, लोन पेयर है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, फ्री रेडिकल है. सो पाई अल्टरनेट पाई, पाई अल्टरनेट पॉजिटिव, पाई अल्टरनेट नेगेटिव, पाई अल्टरनेट लोन पेयर, पाई अल्टरनेट फ्री रेडिकल, पॉजिटिव एंड लोन पेयर्स ऑन एडजेसेंट एटम्स. सो यहाँ पे उन सिस्टम्स में है कि नहीं वो देखना है आपको, उतना ही. क्या हुआ कौस्तुभ? ओके. So first system में do you have pi alternate pi? नो सर. No, right? It is pi alternate pi. बीच में दो गैप्स आ गया. Second system में there is negative alternate pi ना. So answer cannot show resonance करके पूछा है. Answer is nothing but A. Answer is A option only. But बाकी में resonance हो सकता है कि नहीं देखते हैं. This is negative alternate pi. So ये यहाँ पे आएगा, ये इसके ऊपर जा सकता है. There can be resonance. This is pi alternate positive charge. So this will be going here. इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा. एनी डाउट? यहाँ पे पाई अल्टरनेट फ्री रेडिकल, इसके ऊपर ब्रेक करो, इसके ऊपर ब्रेक करो. दिस इज नथिंग बट यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे फ्री रेडिकल. एनी डाउट? गुड. रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल इन अगेन. बताओ क्या लग रहा है आपको? सर ए में ही. ए में ही है. बाकी ऑप्शंस का भी एक बार देख लेते हैं. इसमें इस केस में क्या हुआ? देयर इज लोन पेयर ऑन द ऑक्सीजन. दैट लोन पेयर कैन बी गिवन इन रेजोनेंस. सो द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर व्हिच यू विल गेट इज डबल बॉन्ड. ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा. इस केस में यू आर हैविंग लोन पेयर ऑन क्लोरीन एटम्स. सो ये यहाँ जाएगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे जाएगा. लोन पेयर अल्टरनेट पाई बॉन्ड. डू यू हैव रेजोनेंस इन ऑप्शन डी? वो नेगेटिव चार्ज है. ऑप्शन डी ऐसा कुछ दिया हुआ है. सल्फर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है. डू यू हैव रेजोनेंस इन ऑप्शन डी? रेजोनेंस का मतलब वो जो नेगेटिव चार्ज है, कैन इट बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सल्फर? सोचो.
हो सकता है, रीजन इज सल्फर का outermost shell जो है it is third shell. Everyone concentrate. Sulfur's outermost shell is third shell. In the third shell you have 3s, 3p as well as 3d. So ये जो नेगेटिव चार्ज है बैक बॉन्डिंग जैसा ही कुछ होगा. नेगेटिव चार्ज it is given into the empty orbitals of sulfur in back bonding. जो नेगेटिव चार्ज है it is present on 2p. This is 2p and the sulfur is having 3d orbitals. ये 3d है. So 2p और 3d के बीच में ओवरलैप होगा. ये 2p है इसके ऊपर और ये 3d है. So 2p और 3d is penetrating towards this p. So इन दोनों के बीच में बैक बॉन्डिंग जैसा होगा. इससे फायदा क्या हो रहा है? नेगेटिव चार्ज इनिशियली इस कार्बन के ऊपर है. नाउ द नेगेटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ सल्फर. क्या बोलते हैं पाद? क्या बोलते हो पाद? सही है? हाँ सही है ना. सही है ना? एवरीवन समझ में आया ना? ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है. दिस मे नॉट बी सो ऑब्वियस एट द फर्स्ट साइट, बट आपको देखना पड़ेगा. ये नेगेटिव चार्ज है सल्फर के ऊपर. आपको यू आर हैविंग एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स. इन दोस एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स द नेगेटिव चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड. क्लियर? ओके. See the next question. Tell me the answer. Which does not have a conjugating system? Which does not have a conjugate system? Answer आगे होगा. आ जाना चाहिए अब तक. Answer. You need to know. इसका मतलब क्या है? आपको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना आना चाहिए. अगर CH2 डबल बॉन्ड CH दिया मतलब CH बॉन्ड Cl है, Cl के ऊपर लोन पेयर है. देखो बताओ आंसर. आप लोग करके बताओ. सर थर्ड ऑप्शन में सिंगल डबल सिर्फ है ना. थर्ड ऑप्शन में सिंगल डबल सिर्फ है. इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा फिर? सर तो वही हो जाएगा ना. वेरी क्योंकि गुड. वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में है. बिल्कुल सही. वही है. थर्ड ऑप्शन ही है. इन द सेकंड ऑप्शन अगर आपको शो करना है तो CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH CHO मतलब. सो यहाँ पे आपको पाई अल्टरनेट पाई दिख गया. पाई अल्टरनेट पाई. A multiple bonded atom will always pull electrons towards itself. That is the resonating structure. Try to see all the options and try to draw the resonating structures. Then you will feel comfortable. Okay? आया समझ में? So in option D तो बेंजीन नहीं है. Properly print नहीं हुआ. बेंजीन है. बेंजीन में तो रेजोनेंस होगा ही है. Clear है? Let's go to fourth question. The compound which is not resonance stabilized. Again, same question. Tell me. सर सी में डबल सिंगल सिंगल है. Very good. श्रीजित तो आज सुबह अच्छे से पूजा किया लग रहा है मुझे. श्रीजित. CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl ना. यहाँ पे जो लोन पेयर है दूर है. इट इज लोन पेयर अल्टरनेट पाई बॉन्ड. वेरी गुड. सो आंसर इज सी. यहाँ पे हमने ऑलरेडी पढ़ा. दिस इज पायरोल टाइप ऑफ नाइट्रोजन. पायरोल टाइप ऑफ नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में जाएगा ही है. एंड यहाँ पे आपको लोन पेयर है फिर से. दिस विल बी इन रेजोनेंस. यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है फिनॉक्साइड. दिस विल बी इन रेजोनेंस. आ रहा है समझ में? वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 5. Option B. Option B. रीजन? Nitrogen can't नाइट्रोजन form 5 5 बॉन्ड्स नहीं bonds. बना सकता. वेरी गुड. ऑप्शन बी बिकॉज नाइट्रोजन कैनॉट फॉर्म 5 बॉन्ड्स. उसमें 5 बॉन्ड्स बना रहा है नाइट्रोजन. पृथ्वीराज तो आराम से सो के.
गलती से ऑन कर दिया उसने, सो के पढ़ाई कर रहे हैं। गुड, होप यू विल ऑलवेज हैव दैट चांस। इतना आराम से सो के आप कुछ भी कर सकते हो। फ्यूचर में भी आपको when you go to work and all, होप आपको ऐसा कुछ चांस मिले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 which of the following pair is not pair of resonating structures? ऑप्शन सर ए होगा क्या? यही होगा, सेकेंड स्ट्रक्चर में डबल सिंगल सिंगल डबल दिया। because in the second structure you don't have resonance only, so इधर से ये नहीं बनेगा। एक बार ऑप्शन बी सी डी भी चेक कर लेते हैं। नेगेटिव जो है यहाँ पे आएगा, दिस पाई बॉन्ड विल बी गोइंग हियर, यू विल बी गेटिंग दैट स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही। इसके ऊपर जो लोन पेयर है, लोन पेयर यहाँ पे आएगा, ये जो पाई बॉन्ड है इसके ऊपर जाएगा, तब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दैट इज आल्सो अ वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या हुआ, इसके ऊपर जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर, द लोन पेयर इज फॉर्मिंग अ बॉन्ड, सो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चला गया, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आ गया। आया समझ में? ओके, सो 6th A is the right answer. Very good. Which of the following pair of structures do not represent resonating structures? Again, उसके जैसा ही क्वेश्चन, बताओ आंसर। Option A, ऑप्शन ए, what are those called as? taut, something relative. Yeah, tautomers. Very good. They are not resonating structures, they are called as tautomers. Reason क्या है? In case of resonance, you cannot shift the atom. Atoms का पोजीशन तो वहीं पे रहना चाहिए। इस केस में क्या हुआ, यहाँ से जो हाइड्रोजन है ये हट के यहाँ पे आ गया, the position of atom is changing, or the sigma bonds are not distributed in case of resonance, only the pi bonds are distributed. If I am removing an atom, I am breaking that sigma bond. ये नहीं हो सकता है ना। क्लियर है? ओके, क्वेश्चन नंबर 8, which of the following pairs represent resonating structures? Again बताओ, represent resonating structures, doesn't नहीं, they represent resonating structures. Tell me. Sir, B. B, option B. Option B is right answer. यहाँ पे देखो Cl atom यहाँ पे है, इस केस में चेंज कर दिया, Cl atom यहाँ पे आ गया, so they obviously they are not resonating structures. The position of the atoms must not be changed. In the B structure, एक बार देखो यहाँ पे नेगेटिव अल्टरनेट पाई बॉन्ड है, सो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया, या पाई बॉन्ड को उठा के इसके ऊपर लेके गया, तब आपको नेगेटिव और इसके दोनों के बीच में बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड को उठा के इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जैसे बन गया। ओके, इफ आई वांट टू गेट बैक, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? सी हाउ आई एम राइटिंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये आप लोग भी प्रैक्टिस करो, आपको भी ऑब्वियस लगेगा। ओके, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N है, यहाँ पे NC है। अगेन देखो, द पोजीशन ऑफ एटम्स गॉट चेंज्ड है, so it is not a resonating structure. Yeah, the correct order of stability. Stability के बारे में भी डिस्कस किया ना हमने, बता दो। So will it be C, 1 greater than 2 greater than 3? बिल्कुल सही, 1 greater than 2 greater than 3. In 1 you don't have any charges. In 2 and 3 you have charges. In 3 oxygen के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, and the octet of oxygen is incomplete. ऐसा कभी नहीं करते ना हम। Oxygen octet is becoming incomplete or highly unstable है, so इसलिए it is 1 greater than 2 greater than 3 stability. Okay, what will be the order of energy? If they ask you what is the order of energy, 3 greater than 2 greater than 1. अपोजिट सर, वो ऑपोजिट हो जाएगा, जितना ज्यादा स्टेबिलिटी है उतना कम एनर्जी है। ओके, 10th, which of the following is wrong about resonance? Resonating structures, एक बार सारे स्टेटमेंट्स वन बाय वन पढ़ते हैं, लेट मी नो इफ दे आर राइट और रॉन्ग।
resonating structures having same energy have same contribution. Right. Right? सही है ना? All resonating structures have same number of unpaired electrons. Unpaired electrons मतलब lone pairs हो जाएगा ना? All resonating structures have same number of unpaired unpaired electrons मतलब odd electrons, sorry, not paired electrons. Unpaired मतलब odd electrons. ये वाला भी सही है ना? हम rules for resonance में यही तो लिखा. The sum of Yes, odd sir. electrons in all the resonating structures must be same. इसका मतलब all the resonating structures must have same number of unpaired electrons. So B भी सही statement है. Option C देखो. All resonating structures have same number of bond pair electrons. Is that right? ठीक है, आपको कंफ्यूजन आ रहे तो एक बार ऑप्शन डी भी पढ़ लेते हैं, उसके हिसाब से चेक करते हैं. All resonating structures have same amount of net charge. सही है ना? Yes, sir. Net charge can neither be created nor be destroyed. सब में चार्ज अगर एक बार सब भी इसमें ऑब्जर्व करो. इनिशियल मॉलिक्यूल दिस इज न्यूट्रल, इसमें भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल. यहाँ पे मॉलिक्यूल में नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल, यहाँ पे भी नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल. Whenever you have resonating structures, this is having net charge of negative, this is also having net charge negative. Net charge neutral, यहाँ पे भी negative positive, net charge neutral. Okay, so option D is definitely right. Option C जो है, मैंने क्या कहा rules for resonance में, you need to see for the number of bond pairs plus the lone pairs का sum. Bond pairs plus lone pairs sum will be constant. Bond pairs में you will be seeing the pi bond. लोन पेयर्स में तो आप लोग देख सकते हो. सिग्मा बॉन्ड्स को चेक करने की जरूरत नहीं है. रीजन क्या है? बिकॉज सिग्मा बॉन्ड्स आर नेवर डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट? सो ऑप्शन सी जो है, इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैव सेम नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स नहीं है. दे हैव टू बी, इट हैज टू बी सेम नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स प्लस लोन पेयर्स. इज दैट क्लियर? एवरीवन क्लियर? Yes, sir. Okay. Question number 11. Which of the following is not the contributor of phenoxide? Phenoxide मतलब इसके लिए आपको करना कैसे है? You can do this if you are able to draw the resonating structures of phenoxide. This is phenoxide. They are asking which one of the following is not a contributing structure, मतलब not a resonating structure of phenoxide. क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन क्या होना चाहिए? D. ऑप्शन डी डायरेक्ट है. फिनॉक्साइड इज नेगेटिवली चार्ज, इसमें भी एक नेगेटिव, इसमें भी एक नेगेटिव, इसमें भी एक नेगेटिव. इसमें देखो ओवरऑल न्यूट्रल हो गया. नेगेटिव है तो नेगेटिव ही कंटिन्यू होना चाहिए, न्यूट्रल तो नहीं होगा. ओके, और एल्स इसका ये स्ट्रक्चर कैसे बना होगा? पहला स्ट्रक्चर ये यहाँ से आया, ये यहाँ पे आया, तो यू विल गेट द स्ट्रक्चर ए. स्ट्रक्चर बी कैसे बनेगा? ये यहाँ पे शिफ्ट होके यहाँ पे आया, तो यू विल गेट स्ट्रक्चर बी. स्ट्रक्चर सी कैसे बनेगा? ये यहाँ पे आके ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो यू विल गेट स्ट्रक्चर सी. क्लियर? सो आंसर इज डी. इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके, 15 क्वेश्चंस तक करते हैं, उसके बाद वी विल एंड द लेक्चर. ओके, लास्ट 5 क्वेश्चंस, लास्ट 4 क्वेश्चंस ओनली. Which has localized positive charge? Localized positive charge का मतलब क्या है? What do you understand by the term localized positive charge? Delocalized का मतलब क्या है? मतलब वो मूव हुआ. वो positive charge is getting distributed. Localized का मतलब क्या है? वो positive charge उसी एटम के ऊपर है, मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए. किसमें? The positive charge is not participating in resonance करके पूछ रहे हैं. Which has localized positive charge. हमने ऑलरेडी बात किया, ये जो पर्टिकुलर species है, it cannot participate in resonance because if I am participating in resonance, nitrogen will make 5 bonds. याद है? Yes, sir. So इसमें there is no delocalization or the positive charge is localized. यहाँ पे ये पॉजिटिव है, alternate कुछ नहीं दिख रहे हैं ना, so यहाँ पे भी localized है. इस केस में पाई अल्टरनेट पॉजिटिव, ये यहाँ से यहाँ जा सकता है. इस केस में द लोन पेयर, ये यहाँ से लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज ऑन एडजेसेंट एटम. सो आंसर क्या होना चाहिए?
A and C C. and B. C. Clear? Okay. 13 का आंसर बताओ, आप लोग बताओ. One greater than two, Okay. greater than three, greater than four. Very good. 1 greater than 2 greater than 3 greater than 4. सबसे पहले you need to see for as many octets as possible. जितने ज्यादा एटम्स का ऑक्टेट्स कंप्लीट होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा. 1 और 2 दोनों में ऑक्टेट सब में एटम्स का कंप्लीट है. In 3 you don't have completion of octet for carbon. In 4 you don't have completion of octet for oxygen. ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हुआ तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा बिकॉज ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, राइट. 1 और 2 में कैसे कंपेयर करना है? बेस्ड ऑन चार्जेस. In 2 you have charges, in 1 you don't have any charge. So 1 will be सबसे ज्यादा stable, followed by 2, then 3, then 4. So 4 less than, 3 less than, 2 less than 1. Option B. Any doubt? यहाँ पे इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हुआ, यहाँ पे इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, एंड ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. अगर उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हुआ तो इट इज हाईली अनस्टेबल. 14. In which compound delocalization is not possible? For this you need to know how to draw the structures. Answer direct. Option A. Option A. Butene. क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड है ना. ब्यूटेन मतलब आपको क्या होगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये वाला. पाई अल्टरनेट पाई अल्टरनेट पॉजिटिव, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, बस ऑप्शन ए. 15th. In pyridine number of conjugated electrons are. Conjugated electrons का मतलब क्या है? The electrons which are participating in resonance. कितने Zero. इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में है? 0 नहीं है. The answer is 6. अच्छा. क्योंकि ये पाई बॉन्ड में तो इलेक्ट्रॉन्स ही तो है ना आयुष. These electrons may not participate. वो रेजोनेंस में नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है वो जो पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. पाई बॉन्ड इज आल्सो मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली. सो 3 पाई बॉन्ड्स है, सो यू आर हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर? ओके. या उसके बाद आपको इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस है, जितना आप लोग कर सकते हो करना. वी विल हैव अगेन वन प्रैक्टिस सेशन. अभी हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये करने के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन ये सब करना चाहिए. आफ्टर covering some sufficient theory, we will again solve these questions. Okay. Okay. Thank you everyone. Happy Guru Padwa once again.